अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़वातीन को महफूज तरीके से इस्क़ात हमल की कानूनी तौर पर इजाज़त दे दी है। रियासती हुकूमत ने जियो में तरमीम करते हुए MBBS और BDS कोर्सेज़ के B कैटेगरी में दाखिले के लिए तब्दीलियाँ की हैं। नए जियो के तहत साल रवां MBBS में दाखिलों के लिए मज़ीद 1068 का इजाफा किया जा रहा है। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने BJP के मरकज़ी वज़रा पर तनक़ीद करते हुए कहा कि वो रियासत तेलंगाना से मुताल्लिक़ दोगली पॉलिसी अपनाए हुए हैं। मरकज़ी वज़ीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हिंदुस्तान का अगला मिशन स्वच्छ भारत के ज़िमन में तमाम शहरों को कचरे से 100% पाक बनाना है। शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाक़ों में खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, एलबी नगर, अमीरपेट, नारायणगुड़ा और हिमायत नगर के साथ साथ अतापुर, राजेंद्र नगर और दीगर इलाक़ों में आज बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। हैदराबाद में कल रात भी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से नशेबी इलाक़ों में पानी जमा हो गया था। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह पर भी पानी जमा हो गया था। आज भी हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी रहा। सूर्यापेट ज़िले में भी तेज़ तरीन बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा कि रियासत में तिजारत को फ़रोग़ देने का माहौल परवान चढ़ाया जा रहा है। वो आज सेंडियर इलेक्ट्रिक, जो फ्रेंच एनर्जी मैनेजमेंट और ऑटोमेशन प्रेयर के तहत GMR इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद में संग बुनियाद तकरीब में शरीक थे। उन्होंने कहा कि मुल्क माशी पावर हाउस के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत यहाँ नौजवानों के लिए हर मैदान में कई मौक़े पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट फैक्ट्री के ज़रिए यहाँ 300 करोड़ रुपये के पहले मरहले में सरमायाकारी की जाएगी। इसके अलावा आइंदा 3 मरहलों में इसको मज़ीद वसाअत दी जाएगी। Paul, lovely seeing you, and the small company that you have, that you head, is almost clocking, I think, more than 25,000 people in Hyderabad. So thank you for all the love, thank you for all the support, and we love to see Capgemini grow more and more stronger in my city, in my country. Thank you. Anilji, thank you very much for having us. Again, our initial discussions were not so long ago, and I'm glad that it materialized, and he just showed us the pictures of breaking ground in GMR Arena. Thank you very much. Stephen, thank you for joining us. Javed, I like you, but I also don't like you, Javed, because you didn't tell us, Javed, that out of the 31 factories you have in India, this is in fact going to be the largest and possibly the smartest factory. I think that deserves a huge round of applause to the entire Schneider family. Now, when completed, this would be the largest factory in India after the 3 phases are done. More than 3,000 people, more than 2 lakh SFT of area built. Javed will send you the video here. You're more keen on capturing this. But thank you, Javed, for all the support, because I think this is momentous for us in Hyderabad. Because smart manufacturing is the order of the day. It's what the world recognizes world over, and what you said was also exciting. What you and Anil both said was exciting, because you're not just making, for India. Schneider Electric here is not just going to manufacture for India, but you're 75% of your business, 75% of your products from here will be exported. And thank you, Stephen, for also detailing out on how you plan to leverage this factory for the greater good. And also, I would like to thank you because this is September 2022. And what's delightful to hear always,
is a deadline on when the factory would be inaugurated. You said within a year, by September 23, the factory would be up and running. And I'm very, very confident that with the kind of professionalism that has been shown by Schneider, I think sky's the limit. You have enough room to grow. As Ambassador pointed out, this country needs a lot of solutions in a lot of different areas. And I'm sure Schneider has many, many things to offer. I'm equally impressed and delighted. When we met at the World Economic Forum in Davos, the whole advanced lighthouse recognition for the factory here by the WEF was definitely something that we all take a lot of pride in. But I do have a request for Anil and Javed and Stephen. The Japanese who manufacture here, including Toshiba in my state, have started what is called as Institute in training personnel, an institute in training human resources in smart manufacturing. What I would like Schneider to do is possibly collaborate with the local government and start training future employees and start imbibing the best practices from across the world in smart manufacturing, because it's you and for us to ensure that we have a constant pool of talented think force who can actually help Schneider grow, who can help the state grow. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की जानिब से मल्टी फेस ऑपरेशन ग्रोडा लॉन्च किया गया है, जिसके ज़रिए गैरकानूनी ड्रग नेटवर्क्स जो बैनुल अक़वामी सतह पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं का खात्मा किया जाएगा। सीबीआई, इंटरपोल और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर इंडियन ओशन इलाके में खुसूसी ऑपरेशंस का आगाज़ करने जा रही है। इन ऑपरेशंस के दौरान सीबीआई को तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में छापे मारने, अशिया को ज़ब्त करने और अफराद को हिरासत में लेने का भी इख्तियार रहेगा। आज दुनिया भर में यौम क़ल्ब मनाया जा रहा है। यौम क़ल्ब हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है, जिसके तहत अवाम में क़ल्ब और उसकी हिफाजत से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी की जाती है। इस साल यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट का उन्वान दिया गया है। इस उन्वान के तहत दुनिया भर की आवाम को क़ल्ब से मुताल्लिक़ अमराज़ का मुकाबला करने और उसके ख़ात्मे के लिए शऊर बेदार किया जाएगा। बैनुल अक़वामी यौम क़ल्ब के मौके पर मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अवाम से अपील की कि वह अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने और सेहतमंद ज़िंदगी का अहद करें। रियासती हुकूमत ने जियो में तरमीम करते हुए MBBS और BDS कोर्सेज़ की बी कैटेगरी में दाखिले के लिए तब्दीलियाँ की हैं। नए जियो के तहत साल रवां MBBS में दाखिलों के लिए रियासत भर के 24 खानगी कॉलेजेस में मज़ीद 1068 नशिस्तों का इजाफ़ा किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने जियो MS 129 और जियो MS 130 में दाखिलों से मुताल्लिक़ तरमीम की है। MBBS और डेंटल कोर्सेज़ के 85% बी कैटेगरी के तहत 15% नशिस्तें अक़लियती और गैर अक़लियती तलबा के लिए सिर्फ रियासत के लिए मुख्तस होंगी, जबकि दीगर नशिस्तों के लिए मुल्क भर के दीगर तलबा भी दाखिला ले सकेंगे। तकरीबन 20 गैर अक़लियती और 4 अक़लियती खानगी कॉलेजेस बी कैटेगरी के तहत हर साल 3750 MBBS नशिस्तें अपने कॉलेजेस में फ़राहम करती हैं। रियासती वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ तारक रामाराव ने मिशन भगीरथा स्कीम को कौमी सतह के अवार्ड से नवाजे जाने पर मसर्रत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तमाम देही इलाक़ों में साफ़ पीने के पानी फ़राहम करने पर यह अवार्ड हासिल हो रहा है, जिस पर इन्हें फ़ख्र और ख़ुशी महसूस हो रही है। उन्होंने मरकज़ का भी शुक्रिया अदा किया कि मरकज़ ने इस स्कीम की सराहना की है। उन्होंने मरकज़ से अपील की कि वह नीति आयोग के सिफारिशात की कदर करते हुए मिशन भागीरथता के लिए 19,000 करोड़ रुपये मंजूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़वातीन को महफूज तरीके से इस्क़ात हमल की कानूनी तौर पर इजाज़त दे दी है। इस ज़िमन में शादीशुदा या गैर शादीशुदा होना दस्तूरी तौर पर कोई रुकावट नहीं बनेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस JB पारडीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि गैर शादीशुदा ख़वातीन भी हमल के 20 ta 24 हफ़्तों से कबल इस्क़ात हमल अपनी मर्ज़ी से करवा सकेंगी। ये मामलात इस वक्त सामने आया जब एक 25 साला गैर शादीशुदा खातून ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू होते हुए 23 हफ़्ते 5 दिन के हमल को साख़ित कराने की इजाज़त के लिए अपील दाखिल की थी और हाई कोर्ट ने अपने अबूरी हुक्मनामे में इजाज़त को नामंजूर कर दिया था।
रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बीजेपी की मरकजी वज़रा पर तनकीद करते हुए कहा कि वो रियासत तेलंगाना से मुताल्लिक़ दोगली पॉलिसी अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़रा रियासती हुकूमत की स्कीमात की दिल्ली में जाकर तारीफ़ करते हैं, जबकि रियासत में TRS हुकूमत की स्कीमात की मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि एक जानिब रियासती हुकूमत की स्कीमात को मरकज़ की जानिब से एजाज़ से नवाजा जा रहा है, दूसरी तरफ मरकजी वज़रा रियासती हुकूमत पर करप्शन और दीगर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हैदराबाद में आज मीडिया को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की मिशन भगीरथा स्कीम को कौमी सतह पर अवार्ड हासिल हुआ है। इस मौके पर पंचायत राज के वज़ीर एर्रबल्ली दयाकर राव भी मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि साबिका हुकूमतों के दौरान सरपंचों का काम सिर्फ बोरवेल्स की मरम्मत और इस तरह के कामों की हद तक ही महदूद था, जबकि TRS दौरे हुकूमत में गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान हालात में मुकम्मल तब्दीली आई है। मरकज़ी वज़ीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हिंदुस्तान का अगला मिशन स्वच्छ भारत के ज़िम्न में तमाम शहरों को कचरे से 100% पाक बनाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तमाम मकामी मजालिस बल्दिया में मुल्क भर में कोशिश की जाएगी। हरदीप सिंह पुरी नई दिल्ली में स्वच्छ शहर संवाद ओवरटेक एग्जीबिशन की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को रोबे अमल लाने के लिए 8,000 करोड़ रुपये मंजूर किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए 66 करोड़ मैट्रिक टन कचरे की निकासी और डंप साइट्स पर सर्फ किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क में ज़ीरो डंप साइट का चैलेंज पूरा करने के लिए 15,000 एकड़ अराज़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। मरकज़ ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से कहा है कि वो बारिश के पानी को इस्तेमाल में लाते हुए आंगनवाड़ियों में मुनासिब हार्वेस्टिंग के इंतज़ामात को यकीनी बनाए। मरकज़ी वज़ारत बराए जल शक्ति के तहत बारिश के पानी के ज़रिए हार्वेस्टिंग को तरजीह दी जा रही है, जिसके चलते तमाम आंगनवाड़ी मराकज़ में बारिश के पानी के ज़रिए हार्वेस्टिंग के तरीक़े को इस्तेमाल करने की अपील की गई है। पोषनुमा 2022 के तहत वज़ारत ख़वातीन व बहबूद अफ़ाल और वज़ारत जल शक्ति की जानिब से ज़िम्न में मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। मुसाफिरीन की हिफाजत के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने कारों में 6 एयर बैग्स के इस्तेमाल को ज़रूरी और लाजमी करार दिया है, जिसके पेश नज़र 1 अक्टूबर से यह कानून नाफिजुल अमल होने जा रहा था, जबकि हुकूमत की जानिब से इसमें मज़ीद 1 साल की तोसी की गई है और ये तारीख़ 1 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी गई है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री और दीगर अफराद की जानिब से मुसलसल इसरार के बाद ये फ़ैसला किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसाफिरीन की जानों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत अब तक 218 करोड़ वैक्सीन इस्तेफ़ादा कंदगान को दिए जा चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा कि मज़ीद 21,63,000 वैक्सीन डोजेस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के 4,000 मामलात सामने आए हैं, जबकि 4,400 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से अहले अफराद से करीबी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुँच कर कल तक मुफ्त प्रिकॉशन डोज हासिल करने की अपील की गई है, क्योंकि कल कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का आखिरी दिन है। 75 रोज़ा मुहिम इस साल 15 जुलाई से शुरू हुई थी। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने राजस्थान में जारी सियासी हंगामा आराई पर सोनिया गांधी से मांगी माफ़ी। CM की कुर्सी बचाने की हिकमत अमली। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने राजस्थान में जारी सियासी हंगामा आराई पर सोनिया गांधी से माफ़ी मांग ली है। गहलोत ने जज्बाती कार्ड खेलते हुए गांधी ख़ानदान और कांग्रेस से वफादारी का इजहार किया है। इस हंगामे की जिम्मेदारी लेते हुए गहलोत ने इसके बाद के माहौल में सदर का इंतखाब लड़ने से इनकार कर दिया। सदर के ओहदे की दौड़ में बाहर होने की वजह से गहलोत के CM की कुर्सी कुछ वक्त के लिए बच गई है। गहलोत ने CM रहने का फ़ैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। गहलोत ने कहा कि पिछले 50 सालों से मैंने कांग्रेस के वफादार सिपाही के तौर पर काम किया है। हमारी पार्टी परंपरा आज भी 50 साल ही देख रहा हूँ। नंबर 1 जो होता है कांग्रेस प्रेसिडेंट इंदिरा जी के वक्त से मैं देख रहा हूँ, झाजी जी वक्त में देख रहा हूँ, नरसिम्हा राव जी थे, सोनिया जी अभी भी हैं। हमेशा कांग्रेस के अंदर इतना डिसिप्लिन है
इसलिए आज पार्टी संकट में, अगर जब 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, उसकी लीडर सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती। देखिए, मीडिया की दृष्टि में और दृष्टिकोण हो सकता है। हमारे लिहाज से, हमारे दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर, सभी नंबर 1 जो कांग्रेस अध्यक्ष होती है, उनके अनुशासन में हम काम करते हैं। आप देखेंगे कि उसी हिसाब से आने वाले वक्त में फैसले होंगे। हम सब मिलकर जो आज देश के ऊपर संकट है, तालीम बालिगान को फ़रोग़ देने और बचपन की शादियों को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने स्कूलों में दाखिले की शरह को बढ़ाने और ड्रॉप आउट की शरह को नुमाया तौर पर कम करने के मकसद के तहत YSR कल्याणमत्सु और YSR शादी तोहफ़ा स्कीमें शुरू की हैं। इन 1 अक्टूबर से हो चुका है इनका आगाज़। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने एक दिन कबल 30 सितंबर को वेबसाइट का बाकायदा आगाज़ किया है। दुल्हा और दुल्हन दोनों जो YSR आर्य कल्याणमत्सु YSR शादी तोहफ़ा स्कीमों के लिए दरख्वास्त गुजारों के लिए 10वीं क्लास का पास होना ज़रूरी है। हुकूमत ने तालीम के फ़रोग़ के लिए इस शर्त को लाजमी करार दिया है और शादी के लिए दुल्हन की उम्र 18 साल और दूल्हे की उम्र 21 साल होनी चाहिए। पिछली हुकूमत के मुकाबले YSR जगन की हुकूमत ने मुस्तहिक़ लोगों की माली इमदाद में इजाफ़ा किया है। YSR कल्याणमत्सु के तहत SC के लिए 1 लाख रुपये, SCs की बेनज़ात शादियों के लिए 1,20,000 रुपये, ST के लिए 1 लाख रुपये, ST की बेनज़ाती शादियों के लिए 1,20,000 रुपये, 50,000 रुपये BCs की बेनज़ाती शादियों के लिए 75,000 रुपये। YSR शादी तोहफ़े के तहत मुस्लिम अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपये, माज़ूर अफराद की शादियों के लिए 1,50,000 रुपये और मज़दूर तबक़े के अफराद की शादियों के लिए 40,000 रुपये मंजूर किए जाएंगे। KCR हुकूमत ने औक़ाफ़ी रिकॉर्ड को मुक़फ़िल कर दिया है। वकला दस्तावेज़ात में क्या पेश करेंगे? अक्सर कहा जाता है कि औक़ाफ़ी अराज़ियात मंशाए वक़्फ़ के मुताबिक किसी को नहीं दी जा सकती। सवाल ये है कि क्या 90% कब्ज़ाशुदा वक़्फ़ अराज़ियात मंशाए वक़्फ़ के मुताबिक क़ाबिज़ीन के हाथों में है? मंशाए वक़्फ़ के नाम पर अराज़ियात को गरीब मुसलमानों को फ़राहम करने की मुखालिफत की जाती है। नतीजे में बाज़ ये अराज़ियात पैरोकार हज़रात क़ाबिज़ीन के हक़ में दस्तबरदार हो जाते हैं। इसे क्या कहना चाहिए? पता नहीं अदालत में केसेस कैसे चल रहे हैं। जब अगर चेयरमैन साहब से पूछा जाता है कि भाई फ़लाँ चीज़ का रिकॉर्ड कहाँ है, तो वो ये साफ़ तौर पर कह देते हैं कि भाई रिकॉर्ड को ताला लगा हुआ है और उस ताले को खोलने के लिए हमें कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ता है। कलेक्टर ऑफिस जाने के बाद फिर वहाँ से परमिशन मिला तो हम कुछ कर सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये औक़ाफ़ के जो केसेस हारने की वजह है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जितना भी रिकॉर्ड है वो सील बंद है और वक्त ज़रूरत ये दस्तयाब नहीं है। ना तो वकीलों को दस्तयाब मालूम होता है, ना तो चेयरमैन साहब को इसका वक्फ का रिकॉर्ड दस्तयाब है। ख़ुद चेयरमैन साहब ने हाल ही में एक मुलाकात में कहा कि मैंने उनसे सवाल किया कि जनाब अब तक कितनी मसाजिद को दोबारा ओपन किया गया है, उस सिलसिले में गज़ेट वगैरह चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ दिन का टाइम दीजिए। फिर मैं कुछ दिन के बाद उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाई उसको तो रिकॉर्ड बंद है, लिहाजा हम उस रिकॉर्ड को खोल नहीं सकते और उसके लिए हमें कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ेगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वक्फ प्रॉपर्टियों में जो नाकामी हो रही है अदालत में, उसकी एक वजह वक्फ प्रॉपर्टियों के लिए सही डॉक्यूमेंट्स का दाखिल न करना है। अब दाखिल न करने के ज़िम्मेदार वकला हैं, चेयरमैन है या फिर हुकूमत तेलंगाना है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मगर देखने में तो ये आ रहा है हुकूमत तेलंगाना ने इसे वक्फ रिकॉर्ड को मुखफ़िल कर दिया है, लिहाजा हुकूमत तेलंगाना ही पर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। हुकूमत तेलंगाना को चाहिए और फिर RTA इसके बावजूद फिर जब RTA में सवाल किया जाता है तो फिर वही बात आती है कि भाई रिकॉर्ड बंद है। तो अब देखिए ये प्योरली मुसलमानों की जो है तंजीम का एक हिस्सा है, मुसलमानों फलाह बहबूद के लिए काम करना है। खुद चीफ मिनिस्टर साहब जो है इक़्तिदार पे ना होते वक्त उन्होंने शफाफ तरीके से जो है हुसैन शाह वली दरगाह के केस में कई ऐसे मसाइल में थे, लेकिन जो दूसरे अरकान हैं
जैसे अकबर निज़ामुद्दीन साहब होने दीजिए या फिर बंदगी बादशाह होने दीजिए, ये तो हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है, ये तो गद्दी नशीनों के इलेक्टेड मैन हैं, तो वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते, क्यों इस पर जो है अपील नहीं हो सकती, आखिर ये कब तक चलते रहेगा? देखिए, हुकूमत के अंडर में जब कोई ओहदेदार होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाना इंतहाई मुश्किल होता है। हुकूमत के नज़रियात के मुताबिक ही काम चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ी बात क्या है, आम तौर पर जो चल रहा है, हुकूमत के जो लोग काबिज़ हैं, बाद सियासी लीडर्स भी बड़ी बड़ी ज़मीनात पर काबिज़ हैं, और ख़ुद मामिड़पल्ली में 400-500 एकड़ ज़मीन है, उसमें कई सियासी लीडर्स हैं जो कि पार्टी तब्दील करके फिर TRS में आ गए, लिहाजा उनके गुनाह माफ़। हाँ, फिर चिंगी चल्ला है, चिंगी चल्ला में भी सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, अब वो भी हुकूमत की छत्र छाया में है, गुनाह माफ़। फिर इसके अलावा आपके ऊपर की तरफ साइड में वहाँ भी बहुत बड़ी, कम से कम एक दरगाह के तहत ज़मीन 300 एकड़ ज़मीन है, उस पर भी जो है सो लोग जो काबिज़ीन हैं, हाँ, वो लोग भी पार्टी ज्वाइन कर लिए, TRS ज्वाइन कर लिए तो माफ़। छोड़ के बीजेपी में आते वॉशिंग मशीन में धुल के माफ़ पूरे। नहीं, बीजेपी तो बोलने का वही है। नहीं, ये सियासी तौर पे जो KCR खुद बोले कि जो भी पार्टी छोड़ के इधर आता तो बिल्कुल मैं धुला, बिल्कुल गंगा ना लेता उन्हें, तो वही मतलब है आपका? नहीं, हम बीजेपी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, बीजेपी में नहीं आए, TRS में आए हैं लोग जी। TRS में आने के बाद फिर वक्फ का मसला उठाने, सबिता इंद्रा रेड्डी के बारे में तहक़ीक़ करो, वो भी निकलेंगे कहीं ना कहीं, और फिर आपके दूसरे MLAs हैं जो इधर आए, उनके तो बाज़ाब्ता बड़ी बड़ी ज़मीनात हैं जिस पे जो है सो अपने बड़े बड़े इलाके घेर कर रखे हैं, और फार्म हाउस बना लिए हैं। मामिड़पल्ली में फार्म हाउसेस हैं। देखिए, मौजूदा हालात में अब जो बची पूछी है उसके बारे में आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, बोर्ड से क्या? हाँ, बची पूछी से मैं मुतालबा ये करूँगा कि बजाय आप करोड़पति लोगों को कब्ज़ा देने के बजाय एक गरीब मुसलमान के लिए 100 गज के प्लाट्स दे दीजिए आप, तो ये बहुत बड़ा नेकी का काम होगा। नहीं, आप ही जानते हैं मंशाए वक्फ में इस तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बताते हैं। मंशाए वक्फ में गुंजाइश ना होने के बावजूद 90% ज़मीनात पे कब्ज़ा हो गया। अभी भी फिर आप मंशाए वक्फ अगर लेकर बैठेंगे तो 10% पर भी कब्ज़ा हो जाएगा। वो कब्ज़ा होने से तो बेहतर ये है कि गरीब मुसलमानों के लिए जिन्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं है उन्हें दे दिया जाए बस। आज के अखबार में हमने देखा कि CEO मुस्तकिल नहीं होने की वजह से तबाह बर्बाद हो रहा है वक्फ का मामला। ऐसा लगता है कि 2024 के इलेक्शन आते आते सेंट्रल वक्फ एक्ट है ये वक्फ बोर्ड का, तो मुकम्मल मनसूबाबंद चल रहा है कि वक्फ एक्ट को भी दिल्ली से ही ख़त्म कर दिया जाए। वैसी बात नहीं है, CEO वक्फ की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, वो शायद तहक़ीक़ करते होंगे कि भाई कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। अगर गलत चीज़ को अगर वो पास कर दें, अगर कोई पैरवी करता हुआ कुछ काम बना लिया तो वैसी चीज़ को तो तहक़ीक़ करना पड़ेगा। तहक़ीक़ के मुताबिक अगर CEO साहब अगर किसी को रोकते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अगर पूरे के पूरे कार्रवाइयाँ रोक रहे हैं तो ये गलती होगी। और सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी बात तो है कि आजकल डिबेट चल रहा है कि भाई जो काबिज़ है उसी को औक़ाफ़ी ज़मीनात दे दी जाए, और हो सकता है आगे चल के मरकज़ी हुकूमत इस पर एक क़ानून बनाए और क़ानून के तहत तमाम काबिज़ीन को उसका ओनर बना दे। तो उससे पहले कि काबिज़ीन ओनर बन जाएँ, हुकूमत वक्फ बोर्ड का काम है कि वो गरीबों को जो भी ज़मीनात दे सकते हैं दे दें और अब उनसे किराया वसूल करें। भोंगीर, संगारेड्डी, मेदक अदला के अलावा नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री में अगले 3 दिन तक औसतता भारी और बहुत ज़्यादा बारिश होगी। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा है कि अगले 3 दिनों में रियासत में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। हुकूमत ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भोंगीर, संगारेड्डी और मेदक अजला में मूसलाधार बारिश होगी। कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भदादरी, कुत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेड्चल, मलकाजगिरी, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, रंगारेड्डी, जोगुलांबा, गदवाल में भारी बारिश का इम्कान है।
रियासती वजीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने बीजेपी की झूठी और दोहरी पॉलिसी पर तनकीद की। दिल्ली में तारीफ और गली में तनकीद कहा। टीआरएस के तमाम ही कायदीन इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर झूठ का सहारा लेते हैं। इसीलिए रियासती वजीर सेहत और फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने मरकज़ी वज़रा पर तनकीद की है। मरकज़ी वज़रा ने तेलंगाना हुकूमत के स्कीमात की दिल्ली में सताइश की है, लेकिन हैदराबाद में इनके वर्कर्स वज़रा तेलंगाना की स्कीमात पर तनकीद करते हैं। ये इनकी ज़हनी दिवालियापन का सबूत है। मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत की स्कीमात को फ़ंड्स जारी नहीं करती, लेकिन इसकी कारकर्दगी में हिस्सेदार बन जाना चाहती है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर हरीश राव और एर्राबल्ली दयाकर राव ने एरा मंजिल में वाक़े मिशन भगीरथा के दफ्तर पर मीडिया के रूबरू किया। दो, तीन और चार पहियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए शहर भर में 118 चार्जिंग स्टेशन कायम किए जा चुके हैं। सतीश रेड्डी का बयान। टीएस रेडको चेयरमैन सतीश रेड्डी ने कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के इस्तेमाल की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र टीएस रेडको ने 3 पहिया और 4 पहिया वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां दस्तयाब करवाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। ये बात उन्होंने बयान में 4 शुबे को कहा कि हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफे के लिए सहूलत फ्राहम कर रही है और इसी मकसद के तहत रियासत में 138 चार्जिंग स्टेशन, जिसमें हैदराबाद में 118, वरंगल में 10 और करीमनगर में 10 मराकिज़ कायम करेगी। खातून की तवज्जो हटाकर चोरों ने एटीएम से नकदी चुरा ली। एक नामालूम शख्स ने एटीएम से नकद रकम तुकाराम गेट स्टेशन हदूद से चोरी कर ली। इंस्पेक्टर एल्लप्पा की रिपोर्ट के मुताबिक मलकाजरी का रहने वाली पुष्पालता इस माह की 25 तारीख को वेस्ट मारेटपल्ली सेंट जॉन रोड पर वाक़े SBI ATM से रकम निकालने गई थी। कई बार कोशिश के बावजूद ATM से रकम हासिल न हो सकी। तब एक नामालूम शख्स ने इसके पास आकर कहा कि SBI ATM से रकम निकाल कर दूँगा और उसकी तवज्जो हटाकर अपना ATM थमा दिया और वहाँ से चले गया। धोखेबाज ने कार्ड के ज़रिए 28,670 रुपये निकाल लिए और इसकी तवज्जो हटाकर ये रकम उड़ा ली और वो फ़रार हो गया। पुष्पालता को पता चला कि इसके ATM से रकम निकाल ली गई है तो इसने तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी और पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। मुसाफिरीन ने चोर को मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और ट्रेन में घसीटकर बुरी तरह ज़दकूब किया। बिहार के भागलपुर इलाके में चोर ने ट्रेन में खिड़की से हाथ डालकर एक मुसाफिर का मोबाइल चोरी करता हुआ पकड़ा गया। नतीजे में मुसाफिरीन ने इसे ट्रेन के अंदर खींचकर बुरी तरह ज़दकूब किया। यह वाक़या जमालपुर साहबगंज मुसाफिर ट्रेन में पेश आया। यह वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्रेन में चोरी का एक वाक़या 14 तारीख को बिहार के बेगूसराय ज़िले में भी पेश आया था। अगर जौन बचा बही चोर के एकरा पकड़ खगड़िया ला चल बही छोड़बै ना। दरियाए ब्रह्मपुत्र में मुसाफिरों से भरी कश्ती गर्काब। देहातियों ने चंद लोगों को बचा लिया जबकि कई लापता हैं। आसाम के धुबरी ज़िले में एक खौफनाक हादसा पेश आया। दरियाए ब्रह्मपुत्र में मुसाफिरों से भरी कश्ती उलट गई। कश्ती में 100 के करीब अफराद सवार थे। इसमें तलबा के अलावा दफातर का अमला और साइकिल मोटरें भी मौजूद थी। ये कश्ती भाषाई की जानिब रवां दवां थी, लेकिन वडाबारी के मुकाम पर पुल की चौकी से टकरा गई। नतीजे में उलट गई। देहातियों ने चंद अफराद को बचा लिया है जबकि सिर्फ 2 अफराद ही तीर कर किनारे तक पहुंच सके। कई अफराद लापता हैं। इनकी तलाश जारी है और तैराकों और गौताखोरों की मदद ली गई है।
अलीगढ़ ज़िले के गोश्त की फैक्ट्री में गैस के अखराज से खातून जाँ बहक, 65 अफराद बीमार। एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस के खारिज होने से खातून की मौत वाक़ई हुई, जबकि 65 अफराद बीमार हैं। यह वाक़या उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में हाजी ज़हीर की मिल्कियत अद्वा गोश्त की फैक्ट्री में पेश आया। बीमार मुतासरा कारकुनों को JN मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत इस बात की तहकीकात कर रही है कि इस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का अखराज क्यों हुआ। इस हादसे में बास की हालत तशवीशनाक है। पुलिस फौरी तौर पर मकाम वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। देखिए, अफवाहों पर ध्यान न दें। ये अल्दुआ मीट फैक्ट्री की जो घटना थी उसमें अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। अमोनिया गैस के रिसाव के कारण 59 लोगों को प्राथमिक उपचार हेतु विभिन्न समयावधि में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के साथ हम लोग निकट समन्वय में हैं। डॉक्टर्स का कहना है इनमें से किसी की भी हालत ऐसी नहीं है जिसे खतरे में कहा जाए, सभी सामान्य हैं। प्राथमिक उपचार दिया जा चुका है और किसी की भी डेथ की कोई सूचना नहीं है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना में मृत्यु किसी की भी नहीं। कोई कमेटी बनाई गई है सर जांच की? इसकी प्रारंभिक जांच करने हेतु पुलिस के द्वारा FIR कराई गई है, कर ली गई है और इसकी जांच करने के लिए कि इसमें कोई लापरवाही का एंगल तो नहीं है, जिला उद्योग केंद्र, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मजिस्ट्रेट की एक त्रिस्तरीय कमेटी गठित की गई है। अखिलेश यादव को तीसरी मर्तबा समाजवादी पार्टी का सरबराह चुन लिया गया है और उन्होंने बीजेपी को इख्तिदार से हटाने का मुतालबा किया। अखिलेश यादव को मुत्तफ़िक़ा तौर पर तीसरी मर्तबा समाजवादी पार्टी का सरबराह मुंतखब कर लिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने अवाम से 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने का मुतालबा किया। उन्होंने एक कौमी पार्टी के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी के लिए समाजवादी पार्टी की हिमायत करने को कहा। अखिलेश ने लखनऊ में पार्टी कारकुनों को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि 2022 में अवाम ने उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में SP की हिमायत की है। वाज़ेह रहे कि SP की कामयाबियों में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की जानिब से एक तरफ़ा तौर पर SP की तायद ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों की तवक्कात पर पूरी नहीं उतरी, बल्कि इसने मुसलमानों को SP के करीब लाने वाले लीडर की जानिब से पलट कर भी नहीं देखा। जबकि आज़म खान आज भी सेकुलरिज़म का राग अलाप रहे हैं। इससे उनको या UP के मुसलमानों का कोई भला होने वाला नहीं, क्योंकि SP सरबराह मुसलमानों की किसी भी वक्त हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि वो हिंदुत्व नज़रिए की जानिब झुकाव रखेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था उनको पूरा करना चाहते हैं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आज़ादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग। अमरीकी सदर जो बाइडन फिर एक बार तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आए, क्योंकि वो आन जहानी रुकन की मौजूदगी से मुतालिक दरियाफ़्त करते रहे। एक तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन पूछते रहे कि आन जहानी रुकन कांग्रेसी जैकी कहाँ हैं, ताहम वाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक से इनकार किया है। याद रहे कि इससे कबल भी अमरीकी सदर डाइस से उतरने का रास्ता पूछते रहे, बल्कि जो बाइडन कई बार भूल चूक का शिकार हो चुके हैं और वो हाल ही में बरतानिया में स्टेज से नीचे उतरने का रास्ता पूछ रहे थे। अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत और रूस के दरमियान पेट्रोल, गंदम और गैस की ख़रीदारी के लिए माहदा तय पा गया है। यह तालिबान का पहला बैनुल अक़वामी तिजारती माहदा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने
रूस से तेल, गैस और गंदम खरीदने के माहे पर बाकायदा दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद अफ़गानिस्तान की मैशियत में बेहतरी के कवी इम्कानात पैदा हो गए हैं। अफ़गान कायम मकाम वज़ीर तिजारत हाजी नूरुद्दीन अज़ीज़ी ने मीडिया से गुफ्तगू में मज़कूरा माहदे की तस्दीक की और बताया कि रूस अफ़गानिस्तान को सालाना 10 लाख टन गेहूँ और 10 लाख टन पेट्रोल डीजल फ्राहम करेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का इराक़ी कुर्दिस्तान में ईरानी बागियों के ठिकानों पर लड़ाका और ड्रोन तैयारों से हमला, 13 अफराद हलाक और 58 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक ज़ख्मियों को इराक़ कुर्दिस्तान के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से मुतअद्दिद के हालात तशवीशनाक है। इराक़ ने हमले को सरहदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए बगदाद में ईरानी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने हमलों के बाद अमेरिका की तरह कहा कि वो ख़ित्ते में दहशतगर्दों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। इराक़ की हुकूमत ने और इलाक़ाई कुर्द तंजीम समेत बर्लिन, वाशिंगटन और लंदन ने इराक़ी कुर्दिस्तान के इलाक़े पर ईरान के हमलों की मज़म्मत की है।